Hey guys, welcome back to our YouTube channel Science Simplified. So today we'll start with a new topic that is reproduction in humans. So इस टॉपिक को हमने दो वीडियोस में डिवाइड किया है. In the first video, I tell you about male reproductive system, female reproductive system, gametogenesis and fertilization and development. And in the next video, I tell you about menstrual cycle and reproduction in modern technology. ठीक है? So without wasting much time, let's get right into it. Reproductive system. Just like nervous system, excretory system and digestive system, we have reproductive system. So it is true that the actual functioning of reproductive system starts after puberty, unlike other systems that are important to life since day one. लेकिन without this system, reproductive system, no new life can be created and this can lead to extinction of species. तो अगर आप इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसका appropriate knowledge होना कितना जरूरी है. तो let's start with male reproductive system. Now, the male reproductive system consists of the testes and other ducts and glands. Now, testes are the primary sex organs in males. ठीक है? So, these testes are located in the scrotum, outside the abdominal cavity. अब इसका reason क्या है? तो जो spermatogenesis है, that is formation of sperms, require a temperature 2 to 2.5 degree lower than the normal body temperature. And this scrotum helps the testes to maintain this temperature. ठीक है? So now let's see actually में spermatogenesis होता कैसे है. तो this testes contain numerous seminiferous tubules. अब और इन seminiferous tubules में होता है germinal epithelium. ठीक है? और इस germinal epithelium का जब meiosis होगा तो उससे sperms प्रोड्यूस होंगे. तो अब ये meiosis क्या है? तो meiosis is nothing but a process in which the number of chromosomes are halved. अगर parent cells में 46 chromosomes है तो उसका half यानी 26 chromosomes will be present in the daughter cells. ठीक है? So now let's see about seminal vesicles. जो seminal vesicles है that pour their secretion into the ejaculatory duct. ठीक है? और जो ये corpus gland और prostate corpus gland और prostate gland है, this glands pour their secretion in the urinogenital tract. तो ये जो secretion है सारे वो और sperms ये दोनों मिलके semen बनाते हैं. तो semen क्या है? Semen is nothing but sperms plus secretion of all these glands. ठीक है? तो अब हम एक बार sperms का pathway देख लेते हैं. तो इसके लिए एक निमोनिक है जो मैंने निकाला है, लेकिन ये निमोनिक एक्चुअली में पूरा पाथवे का डिटेल तो कवर नहीं करेगा, बट दिस माइट हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग द एक्चुअल पाथवे. ठीक है? सो लेट्स सी. द निमोनिक इज 7 अप. ठीक है? S स्टैंड्स फॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो. ठीक है? E स्टैंड्स फॉर एपिडाइडिमस, V स्टैंड्स फॉर वास डेफरेंस, ये. Then E stands for ejaculatory duct, then N stands for nothing, U stands for urethra and then P stands for penis. ठीक है? तो ये निमोनिक है pathway of sperms का, जो आपको एक्चुअली में हेल्प कर सकता है. So now let's talk about sperm. तो जो sperm का साइज होता है वो होता है कुछ 60 माइक्रोमीटर्स के अराउंड, 60 माइक्रोमीटर्स. और ये जो पूरा पाथवे जो मैंने अभी आपको बताया वो होता है कुछ लगभग 6.5 मीटर्स लॉन्ग. तो आप सोच सकते हो इतने छोटे से स्पर्म को इतना पूरा पाथ ट्रैवल करने के लिए कितनी एनर्जी लगती होगी. तो अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है स्पर्म्स को? सो फॉर दिस पर्पस सीमेन में होता है फ्रक्टोज. नाउ फ्रक्टोज हेल्प्स गिव्स एनर्जी टू द स्पर्म्स एक्चुअली. ठीक है? तो अब इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेरे पास. तो जो दिस फ्रक्टोज इज यूज्ड एज अ टेस्ट इन गर्ल्स टू डिटरमाइन कि whether sexual intercourse हुआ है या नहीं. अब वो कैसे? तो जो मेल्स होते हैं, मेल के सेमेन में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल की जो जेनिटल ट्रैक्ट है वहां पे कहीं पे भी फ्रक्टोज नहीं बनता. तो अगर वहां पे टेस्ट के वक्त अगर वहां पे फ्रक्टोज मिलता है, यानी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अगर फ्रक्टोज मिलता है, तो दिस इज इंडिकेटिव दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है. और यही सेम टेस्ट is also helpful in rape allegations actually. So now let's start with female reproductive system. ठीक है? तो female reproductive system consists of a pair of ovaries, a pair of oviduct, a uterus जिसको हम womb भी कहते हैं, vagina and a pair of bulbourethral glands.
ठीक है। तो ये जो सारे ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये सारे के सारे एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होते हैं। और अनलाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहां पे हमने देखा था दैट टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन इन द स्क्रोटम। ठीक है। तो एवरी मंथ फ्रॉम अल्टरनेटिंग ओवरीज एक ओवम रिलीज होता है। ठीक है। और जो ये फ्री एंड है ओविडक्ट का, उसमें फनल, वो फनल लाइक होता है और उसके सेंटर में एक ओपनिंग होती है। तो उसी ओपनिंग से जो हमारा oocyte है वो इसी ओपनिंग के थ्रू अंदर जाता है। ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो कि oocyte क्या है, तो oocyte इज नथिंग बट इमेच्योर ओवम। इसी oocyte का जब मियोटिक डिवीजन होगा तो उससे ही ओवम बनेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना oocyte और ओवम के बीच में। ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इतना ही था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है। अब गैमेट्स क्या है? तो गैमेट्स आर नथिंग बट एन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव सेल्स। जैसे मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में ओवम, यानी जो स्पर्म और ओवम है वो ह्यूमंस के गैमेट्स हो गए एक टाइप के। ठीक है। तो अब ये जो दोनों गैमेट्स है, ये दोनों हमने ये दोनों मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। अब मियोसिस हमने देखा था कि वो क्या है, हार्विंग ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो एक बार उसकी थोड़ी प्रोसेस देख लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो है 2n, ये जर्म सेल्स है। ठीक है। 2n यानी क्या? 2n मतलब डिप्लॉयड। 2n मतलब n इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके। तो अब एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कि n इज 23। n कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए n इज 23। तो 2n यानी 46 हो गया, 2 into 23। ठीक है। तो उसको हम डिप्लॉयड बोलते हैं। ठीक है। अब डिप्लॉयड क्या है? डिप्लॉयड मीन्स डिप्लॉयड इज एन सेल और एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स पेयर्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब इस जर्म सेल्स का जब मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस में हमने जैसे देखा ही था हार्विंग होती है क्रोमोसोम्स और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, तो उससे n बनेगा। n क्या है? n है अपने गैमेट्स, स्पर्म्स एंड ओवम। ठीक है। और जो ये होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। समझ रहे हो आप? डिप्लॉयड से हैप्लॉइड। ठीक है। तो अब हमारे पास दो हैप्लॉइड गैमेट्स बन गए, एक स्पर्म और एक ओवम। अब इन दोनों का जब फ्यूजन होगा और इनसे जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉयड हो जाएगा फिर से। तो ये ऐसी प्रोसेस चलती है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो मेल्स होते हैं, मेल्स में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी अप टिल डेथ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में। ठीक है। और तो ये एक टाइप से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द स्टार्ट जो मेल्स होते हैं दैट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द एंटायर लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम प्यूबर्टी। ठीक है। अब फीमेल्स में क्या होता है? नाउ फीमेल फीटस इज बोर्न विद 2 to 4 मिलियन इमेच्योर oocytes। ठीक है। और हर महीने एक oocyte ओवरी से, अल्टरनेटिव ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। फिर हाँ, तो अब जो 2 to 4 मिलियन ओवम इमेच्योर oocytes थे वो सारे के सारे तो रिलीज नहीं होते। तो अब क्या होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द प्यूबर्टी इन वुमेन दैट इज अराउंड 10 to 14 ईयर्स, वहां से लेके मिनोपॉज तक यानी 45 to 50 ईयर्स तक की एज में हर महीने एक ओवम रिलीज होता है। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन लगाए तो लगभग 400 oocytes, इमेच्योर oocytes ओवम रिलीज होते हैं। ठीक है। तो अब बाकी के जितने ही बचे ओवम है और इमेच्योर oocytes है, उन सारों का क्या होगा? उनका डीजेनरेशन हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होगे कि मेनोपॉज क्या है? तो मेनोपॉज इज नथिंग बट स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब ये क्यों होता है? तो देयर आर सम चेंजेस इन द हार्मोन्स इन वीमेन। ठीक है। उसके वजह से क्या होती है? स्टॉपेज हो जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब मेनोपॉज के बाद आप एक तरह से कह सकते हो कि फीमेल लूजेस इट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है। तो ये बात होगी गैमेटोजेनेसिस की। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? Fertilization is the process of formation of zygote by the fusion of male gamete that is sperm and female gamete that is ovum. इन दोनों का जब फ्यूजन होगा और इनसे जब जाइगोट बनेगा तो इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, दिस टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट इन फीमेल्स। तो एक टाइप से फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में इंटरनल होता है। अब कई सारी फिशेस हमें ऐसी भी देखने मिलती है जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। Now, millions of sperm begin their journey in the vagina, but only one of those few million is able to fertilize the ovum present in the oviduct. अब थोड़ी applied knowledge देख लेते हैं।
the oocytes that are released during the last few months in females, यानी menopause के अराउंड जो लास्ट के कुछ oocytes जो रिलीज होते हैं वो ऑलरेडी 40 to 50 ईयर्स ओल्ड होते हैं। तो ऐसे oocytes जो होते हैं इनमें डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है वो डिमिनिश हो जाती है, और इसी वजह से जो म्योटिक डिवीजन होता है वो ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और अगर ऐसे किसी oocyte का फ्यूजन किसी स्पर्म के साथ हो जाए तो इससे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे या न्यूबॉर्न जो इससे प्रोड्यूस होंगे उनमें कई सारी अबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, और इसी का एक एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है फर्टिलाइजेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। Sex determination in humans. Now, humans contain 22 pairs of autosomes plus 1 pair of sex chromosome. ठीक है, तो इन टोटल हो गए 46 क्रोमोसोम्स। अब मेल्स में XY क्रोमोसोम होते हैं एंड फीमेल्स में XX क्रोमोसोम होता है। अब आपको रिकॉल करना पड़ेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। वहाँ पे हमने देखा था कि जो जर्माइनल एपिथेलियम होती है जो कि डिप्लॉयड होती है, उसका जब मियोसिस होता है तो उससे हैप्लॉइड स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ वो जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि दो टाइप के स्पर्म्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ऐसे स्पर्म्स जिनमें 22 प्लस एक्स हो, एक्स क्या है, एक्स इज द सेक्स क्रोमोसोम, या तो ऐसे स्पर्म्स जिनमें 22 प्लस वाई हो, वाई अगेन इज अ क्रोमोसोम। ठीक है, और इसी जगह पे फीमेल्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप के oocytes प्रोड्यूस होते हैं, सारे के सारे 22 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है। जो फर्स्ट टाइप है स्पर्म का दैट इज 22 प्लस एक्स, अगर ये फ्यूज हो जाते हैं फीमेल के 22 प्लस एक्स के साथ तो क्या बनेंगे 44 प्लस एक्स एक्स। अब 44 क्या है, 44 आर ऑटोसोम्स एंड XX क्या है, ये है सेक्स क्रोमोसोम। तो XX तो हमने देख रखा है कि ये फीमेल्स में होता है, तो ऐसी जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी उसका जो सेक्स होगा वो फीमेल होगा। ठीक है, अब सेकेंड चीज देख लेते हैं। जो सेकेंड टाइप के स्पर्म्स है 22 प्लस वाई, वो अगर फ्यूज करते हैं फीमेल का 22 प्लस एक्स के साथ तो उससे जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी उसमें होंगे 44 प्लस एक्स वाई। अगेन 44 आर द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स एंड एक्स वाई इज अ सेक्स क्रोमोसोम। तो एक्स वाई हमने देखा है ये किसमें, मेल्स में मिलता है, तो जो प्रोजेनी होगी उसका जो सेक्स होगा वो होगा मेल यानी बॉय चाइल्ड। ठीक है, तो इन अ वे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे दैट इज डेवलपमेंट एंड बर्थ। तो अब तक हमने क्या देखा कि मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो रहे थे दैट इज स्पर्म एंड ओवम, फिर इनका फ्यूजन हो रहा था और इनके फ्यूजन से जाइगोट बन रहा था। ठीक है, तो अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। तो जब ये जो जाइगोट जो बना है दैट विल अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स और उससे एम्ब्रियो बनेगा। अब माइटोसिस क्या है, तो माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच a cell divides to form two daughter cells that are genetically identical to the parent cells. ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो बना, this embryo will be pushed towards the uterus. ठीक है, और यूटेरस में आके इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो अब तक हमने देखा कि इसका इम्प्लांटेशन हो चुका है। तो अब ये जो ग्रोइंग फीटस है उसको ऑब्वियसली न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो अभी ये जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से डिराइव करेगा, तो इसका आंसर है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा हेल्प्स द चाइल्ड टू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम हिज और हर मदर। ठीक है, और ऐसे करके इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा कुछ 9 मंथ्स के बाद। ठीक है, और दिस इज द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। और मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ डन, थैंक यू।